یہ سب کی ذمہ داری ہے انصاف کے ساتھ کہ وہ پوری قوم کے دلوں میں ان کو آرگومنٹس کرنے پڑ گئے. عمران خان صاحب بارہا میں اور آپ یہاں بیٹھ کے آج پاکستان میں کاروبار ختم ہو شیلنگ ہوتی تھی رات کے ٹائم. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت سی چیزیں جی اس وقت ہو رہی ہیں آپ لوگوں کے سامنے. حالات جو ہے وہ کس طرح سے بدل رہے ہیں, اچھائی کی طرف جا رہے ہیں, بہتری کی طرف نہیں جا رہے, بہتری کی طرف یہ ہم نہیں جانتے. اس کے لیے ہم نے آج جن مہمان کو مدعو کیا ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں بتا سکیں گے. آرمی چیف صاحب کی جو ہے وہ دورہ واشنگٹن کے بارے میں باز گشت ہو رہی ہے. عمران ریاض خان کی واپسی ہے, خان صاحب کی اٹک جیل سے اڈیالہ منتقلی ہے. اس کے علاوہ تمام چیزیں وہ محیط پیر زادہ صاحب کی ایک بات ہے اس کو میں یہاں پر بورو کروں گا کہ ڈاٹ کنیکٹنگ. So we're going to try to connect the dots together if there are any dots to be there to be connected. رؤف حسن صاحب میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم رؤف صاحب, thank you so much once again. وعلیکم السلام جی, thank you very much, very kind of you. چلیں جی, پہلا ہی جو ہے نا وہ آپ نے پھر کہنا ہے کہ پہلا سوال ایسا کر لیا, لیکن پہلا ہی سوال ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ یہ مان چکا ہے کہ اس ملک کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے اور اس ملک کو جو چلانے والے ہیں وہ چیف آرمی اسٹاف صاحب ہیں, اور انہوں نے ان کو واشنگٹن مدعو کیا ہے, جو کہ لگ رہا ہے کہ چند دن کے لیے اس میں تاخیر آ گئی ہے, لیکن بہرحال انہوں نے ان کو مدعو کیا. یہ آج کی کہانی نہیں ہے علی صاحب. یہ کہانی جو ہے وہ اس کا آغاز پاکستان کی کریشن کے فوراً بعد سے ہو گیا تھا, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے اس نے ہمیشہ پاکستان میں ملٹری جنرلز کے ساتھ روابط جو ہے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کیا ہے, اور جمہوریت جو ہے وہ اس کا ذکر وہ برائے نام کرتے ہیں. مطلب ان دا سینس کہ جی ویسے تو پروکلمیشن ان کی یہی ہے کہ جی وہ جمہوریت کے دائی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی تعلقات جو تھے وہ ان کے انہوں نے ہمیشہ زور دیا ہے پاکستان ملٹری کے ساتھ ان کے تعلقات کے اوپر. اس میں کوئی مذائقہ نہ ہوتا اگر وہ ایک سرٹن کانٹیکسٹ میں ہوتے اور ان کو آپ ان دی کانٹیکسٹ آف اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ ڈیفائن کر سکتے. تو یہ جو اب آج کے حالات میں آپ نے یہ سوال کیا, یہ بالکل ٹھیک ہے. اب تو ساری کہانیاں جو ہیں وہ مطلب پبلک بھی ہو چکی ہوئی ہیں. انٹرسیپٹ نے اپنی سٹوریز بھی چھاپ دی ہیں, ہم سب نے دیکھ لیا ہے, ساری دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے جو ہوا ہے پچھلے 1.5-2 سالوں میں, 2.5 سالوں میں, 3 سالوں میں. وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جی کیا ہوا, کس طریقے سے خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا, ان کو نکالا گیا. تو یہ ساری اب فکشن کے ریلم سے نکل کے ریالٹی کے ریلم میں آ چکے ہوئے ہیں. مطلب وہ آپ ہسٹری کو ٹریس بھی کریں گے بیک ٹو 1948-49 تو بھی آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا. جی وہ تعلقات مضبوط رہے ہیں اور تعلقات مضبوط ہیں, بالکل ان کو انوائٹ کیا گیا ہے. یہ وہی حکومت ہے جس نے کہ خان صاحب کے پرائم منسٹر بننے کے 1.5 سال تک ان سے کسی لیول کے اوپر کوئی رابطہ نہیں کیا تھا. سو یہ ایک پریجوڈس ہے جو امریکن حکومت کا, وہ بڑا کلیئرلی سامنے آتا ہے, اور جس کا وہ سائفر میں ذکر کیا گیا تھا. اس کے بعد جو اس کے کانٹینٹس ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیجیے. سو اس میں مجھے تو کوئی شوق نہیں پہنچا فرینکلی. اسی آئی تھنک یہی ان کی جو پاکستان کے ساتھ تعلقات کی جو بیسس ہے وہ یہی ہے, ملٹری کولیبریشن. آپ سے اگر اسی پہ میں پوچھوں کہ what does we have to offer and what could be their demand onto that, potentially? What could it be? دیکھیے جو ہماری لوکیشن ہے نا علی, وہ سب سے بڑا جو ہے ان کا ان کے لیے ایک انہوں نے اپنی جو بھی اس خطے میں افغانستان میں انہوں نے اپنا کام کیا ہے, جو بھی لڑائی وغیرہ کی ہے, جو انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کیا پورے خطے کو, اس میں بھی پاکستان کا ایک رول رہا ہے. اس سے پہلے سوویت یونین کے خلاف جب انہوں نے لڑائی کی, انیشیٹ کی, اس میں پاکستان نے سب سے آگے بڑھ کے وہ لڑائی میں کیا. اپنی ریجنل کنیکٹیوٹی کو انہوں نے جیپرڈائز کیا. پھر ٹیرر کے اوپر جو لڑائی ہوئی اس میں بھی پاکستان ایک لیڈ پلیئر رہا. پاکستان کی اپنی تباہی ہو گئی ان دا پروسیس. ایک اندازے کے مطابق $150 بلین کا لاس ہوا. ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اکنامک جو کلیپس ہوا ہے پاکستان کا, اس کی ایک میجر فیکٹر بھی ہوئے ہے. پھر پاکستان ریجن میں اپنا رول پلے نہیں کر سکا, جو کہ وہ پلے کر سکتا تھا. وہ اسی کانٹیکس میں تھا کیونکہ اس کی الائنمنٹ جو تھی وہ امریکہ کے ساتھ تھی. آج وہ جو ایک نئی لڑائی جو لے کے اس خطے میں آ رہا ہے وہ چائنا کو کنٹین کرنے کی لڑائی ہے, اور وہ اب ان کے جو
पेपर्स पब्लिक हुए हैं उनमें ये उन्होंने एक्नॉलेज किया हुआ है, और उसमें भी वो चाह रहे हैं कि वो जब हम हुकूमत में भी थे तो उस वक्त भी हमें पता था कि इंसेसेंट प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर कि वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को कंटेन करें, CPEC का जो स्कोप है उसको कंटेन करें और ना करें, उसमें और प्रोजेक्ट्स ऐड ना करें। हम सारे वी आर विटनेस टू ऑल दैट, बेसिकली वी नो दैट। सो यू नो चीन के खिलाफ जो उनका एक ये एडवेंचर है, जो कि मिस एडवेंचर है बल्कि, जो सामने आ रहा है, उसमें चाहते हैं वो कि पाकिस्तान रोल एक प्ले करे। और मैंने लिखा भी है इसके ऊपर, ये लास्ट जो मेरा आर्टिकल था जो इनफैक्ट फ्राइडे को पब्लिश नहीं हुआ बिकॉज उन्होंने उसको एडिट किया बहुत ड्रास्टिकली, तो सैटरडे को पब्लिश हुआ। उसमें हमने यही कहानी जो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात, चीन के साथ अपने ताल्लुकात, और आज हम जिस सहराहे के ऊपर खड़े हैं, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चीन है और बीच में हम हैं, और हम अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे कि हमारा दोस्त कौन है और कौन हमारा दोस्त नहीं है। ये कोई इतना मुश्किल फैसला होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आई होप एंड प्रे कि जी इन द प्रोसेस हम चीन के साथ अपने ताल्लुकात को जेपटाइज ना करें। और बाय द वे पहली दफा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है, फिल्टर हो रही है कि हालात कुलियतन हमारे कंट्रोल। शहबाज राना साहब का एक आर्टिकल भी है इसके ऊपर कि एनर्जी में और वाटर और जो क्लाइमेट चेंज वाले में, उसमें उन्होंने अपने आप को पुल आउट कर लिया और वो मेरे ख्याल से वसूलियों के लिए रह गए। तो ये भी एक आर्टिकल वैसे उनका है इस तरह का इसके ऊपर। अच्छा, मैं इसी तनाजुर में अगर आखिरी सवाल ये अमेरिका वाला ट्रिप और उसमें अगर मैं कर लूँ, इसी का एक पार्ट है, और वो ये है कि अगर अमेरिका में भी इलेक्शन ईयर आ चुका हुआ है, मतलब और चंद माह में ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी हैं, उनके प्राइमरीज शुरू हो चुके हैं, और ये वो आम लोगों का ख्याल है कि प्रॉब्लम डेमोक्रेट्स वापस नहीं आएंगे, रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट होगी। रिपब्लिकन्स में कौन ऊपर आता है, नॉमिनी होता है, वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये चेंज ऑफ पावर इन द US is going to make a difference for the rest of the world, which it always kind of does, but would it change like this our part of the world? अगर आप 76 साल तारीख में पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका को साथ, उसकी तारीख का एक इहाता करें, तो अली आपको पता चलेगा कि जब भी रिपब्लिकन वहाँ हुकूमत में आए हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ ड्रास्टिकली इंप्रूव किए हैं। आप निक्सन की टाइम ले लीजिए, कोई और भी ले लीजिए, और जब भी डेमोक्रेट्स हुए हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं उसमें मसाइल क्रिएट हुए हैं। ये एक ट्रेडिशन रही है, ये एक थ्रू आउट एक ट्रेडिशन रही है। सो जब इमरान खान साहब गए थे विजिट के ऊपर, जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो आपको पता है कि उनको जो उनको रिसेप्शन अकॉर्ड किया गया था, जिस वार्मथ के साथ उनको रिसीव किया गया था, और जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने उस वक्त के, ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, वो तारीख का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद जब बाइडेन साहब आते हैं तो पौने 2 साल, about almost close to 2 years, there was absolutely no contact at any level. Consequently, it only reestablishes the tradition of Democrats versus Republicans coming to power in America, और उसका direct impact जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है। So in answer to your question, अगर Republicans जीतते हैं तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इम्प्रूव होने के बहुत से चांसेस मौजूद हैं, बहुत बल्कि डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। ओके, चलें, ये तो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है यहाँ पर। मैं आपसे अगर पूछूंगे, हमारे एक और हैं एक बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पुख्तगी नहीं है ज़हन में, लेकिन वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। वो 5 रोज़ा दौरे पर गए थे और उसके बाद वो दौरा जो है वो ऐसा दौरा है कि वो दौरा चलता रहा। उन्होंने बहुत से बयानात दिए, बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान, ऐसे बयान जो उनकी उसमें आते नहीं, अबव हिज पे ग्रेड है, उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, तमाम चीजें। वो कहते हैं जी इलेक्शन तो इमरान खान के बगैर भी हो जाएंगे और PTI के बगैर भी हो जाएंगे और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। मैंने अली उसके ऊपर ट्वीट भी किए हैं, मेरा ख्याल आप उसको अगर फॉलो करें तो उसको मैंने तो उनको यहाँ तक कहा है कि इनके दिमाग में कोई खलल है और इनको चाहिए कि वो अपनी जुबान खोलने से पहले ज़रा उसका इलाज करवा ले। मैंने तो यहाँ तक गया हूँ, मैंने फ्रैंकली इन डिसेंट वर्ड्स आई हैव कन्वेड दिस टू हिम कि प्लीज फॉर गॉड सेक, देखिए इनका मैंडेट नहीं है। पॉलिसी मैटर्स के ऊपर बयान देना केयर टेकर हुकूमत का मैंडेट नहीं है। इनका जो मैंडेट है वो आप इलेक्शन एक्ट सुनो पढ़ लीजिए 2017 या फिर आप पाकिस्तान का आइन पढ़ लीजिए, उसमें बड़ा क्लियरली डिफाइंड है। बेसिकली 2 इनके रोल्स हैं। नंबर 1 रोल है इलेक्शन करवाना 90 डेज की मोहलत के अंदर। दूसरा इनका रोल है कि डे टू डे अफेयर्स ऑफ द स्टेट है उनको जो होता है ना एडमिनिस्टर करना। जैसे आप घर चलाते हैं तो आप घर के जो डे टू डे अफेयर्स है ना उनको लुक आफ्टर करना। इसके अलावा इनका कोई पॉलिसी डिसीजन
स्टेटमेंट देने का या पॉलिसी डिसीजन लेने का मैंडेट ही नहीं है। कंसिक्वेंटली एक ट्रेडिशन जो पाकिस्तान में शुरू हुई है पिछले 1 साल से, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रबिश किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को रबिश किया गया है, जिसमें रूल ऑफ लॉ को रबिश किया गया है, और जो हो रहा है फस्तायत का आप देख रहे हैं मुजाहरा वर्चुअली डे टू डे बेसिस के ऊपर हो रहा है, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में फॉल करता है। और शायद उसको भी पता है जी कि मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है, मैं जो चाहूँ कहूँ, जो मर्जी कह दूं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो सब कुछ हो रहा है मे बी टेम्परली, ये सारे दे में गेट अवे विद इट अली, बट इसका जो इम्पैक्ट है रियासत के ऊपर वो हैमरिंग है, वो रियासत की फाउंडेशंस को हिला रहा है। ये मतलब ये उनको वीकन कर रहा है। रियासत जिन फाउंडेशन पे खड़ी है वो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते, वो इस तरह से ऐसा है जैसे कि हवा में मुअल्लक है हमारी रियासत। तो इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अच्छा, मेरा पता क्या इस सवाल का ना मेरा मकसद जो था, मैं जरा थोड़ा सा अगर इसको ऐड कर दूं, मैं ये कह रहा था कि ये काकड़ साहब का जो बयान है केयर टेकर का, हमें पता है कि आई मीन किस तरह से आए हैं, क्या है, ये तमाम चीजें, इसमें हम बहस में नहीं पड़ते। लेकिन आपको लगता है कि ये बयान जो है ये सोची समझे तरीके से, और ये इनका अपना बयान नहीं है, कहीं से फीड करवाया गया है बयान, और जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि हाउ वुड द वेस्टर्न वर्ल्ड रिएक्ट ऑन टू इट? प्रोबेबली दैट्स अ पॉसिबिलिटी अली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हो सकता है चूंकि ये अमेरिका में बैठे हुए थे तो वहां से इनकी ये बयानबाजी शुरू हुई है, उसके बाद ऑक्सफोर्ड में गए हैं, वहां वो बयानबाजी कंटिन्यू की है, पाकिस्तान आके भी शायद उसी किस्म के बयान देते रहेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वेस्ट में खासा प्रोटेस्ट हो रहा है, और खासकर अमेरिका में आप देखिए कि कांग्रेस के पास जाने के इम्कानात मौजूद हैं। सो कांग्रेस के पास जब जाएगा, अगर वहां रेफरेंस जाएगा, तो फिर लाजमी बात है वो शायद डोनाल्ड लू को भी बुलाएं, उसकी भी स्टेटमेंट ले वहां अंडर ओथ। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अभी तक अगर कोई शक किसी के ज़हन में है तो वो भी रिमूव हो जाएगा कि खान की गवर्नमेंट जो है वो अनडेमोक्रेटिक तरीके से निकाली गई थी, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस वो नहीं था, इट वाज एन इंजीनियर्ड प्रोसेस बेसिकली। सो ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरी बात, आपने जो पहले हिस्सा जो आपका सवाल का है वो है, देखिए ये एक प्लांटेड आदमी है, इसकी बैकग्राउंड सबको पता है, ये इसके शोल्डर्स जो हैं वो इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेयर करने के काबिल ही नहीं थे, ना इसका दिमाग इस काबिल है कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं वो उनको बेयर कर सके। सो कंसिक्वेंटली बेसिकली ये एक स्टूज है, एक डाउट है जिसको प्लांट किया गया है, और उसकी जो स्ट्रिंग्स है वो कहीं और से पुल हो रही हैं, और वो तोते की तरह बोल रहा है जो उसको कहा जा रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं पहले सवाल के जवाब में भी जो मैंने कहा था उसका भी, और यही मैं उसको रिपीट करता हूं कि हमें चाहिए कि हम अपनी रियासत के हाल के ऊपर खुदा के वास्ते रहम करें, इसका कुछ हिस्सा छोड़ दें जिसकी वजह से ये आगे सस्टेन कर सकें, हम इसको कंटिन्यू कर सकें। ये रियासत क्रम्बल कर रही है। एक मुल्क जो, एक रियासत जो है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जिसमें रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस नहीं है, और जिसमें काकड़ जैसे बंदे जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स बने हुए हैं, या फिर एक क्रिमिनल माफिया जो है, शरीफों का माफिया और जरदारियों का माफिया जो 15-16 साल इस मुल्क के ऊपर काबिज रहा है, जिनको वहां बिठाया गया, जिनको प्लान किया गया, क्या रियासत के लिए बस अब यही मुकद्दर रह गए? क्या इस मुल्क के अवाम का यही मुकद्दर है कि वो क्रिमिनल्स जो हैं उनको बर्दाश्त करें, और वो काकड़ जैसे बिलो एवरेज लोगों को बर्दाश्त करें कि जी वो उनके मैटर्स जो हैं उसको एड्रेस करें? नहीं, देखिए रऊफ साहब, अब देखिए हम नवाज शरीफ के बारे में बात करें, वो तो दोबारा इनकलाबी हुए हैं, वो तो कह रहे हैं मैं इनकलाब की बड़ी एक उनके अंदर वो जो है ना वो शम्मा जो है वो रोशन हो चुकी है दोबारा। वो कहते हैं मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से आना चाहता हूँ, टर्म्स पे आना चाहता हूँ, और इसको भी सजा दें, उसको भी सजा दें। 2 साबका, एक आर्मी चीफ को, एक जो है वो DGISI को, जजों को, वो तो बहुत ज्यादा मुतालबे कर रहे हैं, वो तो इस वक्त कन्फ्रंटेशन के चक्कर में है, और उनके जो छोटे भाई हैं वो नहीं है। ये क्या आपको लगता है कि ये कोई गुड कॉप बैड कॉप वाला सीन है? ये मतलब जब इनका दिल करता है कन्वीनियंटली ये इनकलाबी बन जाते हैं, जब इनका दिल करता है ये मतलब किसी और वो वोट को इज्जत दो से का सफर जो है वो बूट चाटने तक निकल जाता है। वोट को इज्जत दो की कब्र जो है सर वो भी खोदी गई थी, इन्होंने खुद ही खोदी थी। अब ये जो जनरल्स और जजेस के बारे में बात कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल नैरेटिव जो है वो ऑलरेडी रिवर्स हो गया है। जो 10 लाख बंदे ये इकट्ठे कर रहे थे उनको रिसीव करने के लिए, उसके लिए भी कोशिश कर बैठे हैं, ये तो भी रिवर्स हो गया है। अब कहते हैं जी कि वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर एड्रेस करेंगे, मेरा ख्याल वो भी अनकरीब रिवर्स हो जाएगा। सो ये जो ट्रेडिशन है इनकी पॉलिटिक्स की वो यही है कि ये जरदारियों को उल्टा लटकाते
की भी कोशिश इन्होंने नारे लगाए थे, जरदारी को इन्होंने अनारकली की सड़कों के ऊपर ड्रैग करने के भी नारे लगाए थे। उसका अंजाम आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया, सब ने देख लिया है। तो मैं तो इन लोगों को अब सीरियसली लेता नहीं हूँ। मैं तो नहीं फील करता कि वो वापस आएंगे एक्चुअली। और अब जो सिचुएशन बनी है उनके लिए वो कंड्यूसिव भी नहीं है। जो नैब के जो इन्होंने सेल्फ सर्विंग अमेंडमेंट्स की थी वो रिवर्स हो गई हैं। इन सब लोगों के खिलाफ जो है वो केसेस खुल गए हैं। बंदियाल साहब ने जाते जाते ये भी प्लेटर के ऊपर ऑफर कर दिया है उन फोर्सेस को, इन ताकतों को जो कि इस वक्त मैनेज कर रही हैं पाकिस्तान को। सो उनके पास ये है कि वो इस इन रिवर्सल ऑफ लॉस को यूज कर सकते हैं, जिनके खिलाफ वो चाहें यूज कर सकते हैं। और इनको अपनी जिसे कहते हैं कि जगह की अनकरीब पहचान हो जाएगी। बाकी ये है कि मैं ये इतना कंफर्म आपको कर सकता हूँ कि इनकी फैमिली के अंदर बहुत देर से जो एक डिविजन थी बड़े शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, वो मेरा ख्याल है कि खासी एक्सेंचुएट कर गई है इस स्टेटमेंट के बाद। और वो डिवीजन जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान नहीं है, बल्कि अब उनकी औलाद तक हमजा और मरियम तक भी पहुंची हुई है। और मेरा ख्याल है कि असेंडेंसी के लिए, पॉलिटिकल असेंडेंसी के लिए ये लड़ाई जो है आने वाले दिनों में शायद ज्यादा शिद्दत इख्तियार करे। तो PMLN की कवर जो है वो खोदी जा चुकी हुई है। उनका पॉलिटिकल फ्यूचर फ्रैंकली मैं बारहा लिख चुका हूँ। मुझे उनका पॉलिटिकल फ्यूचर, खासकर ये 16 महीने की जो उन्होंने हुकूमत की है और उसके बाद जो आवाम का हशर किया है, जिससे जैसे कि जिंदगी जो है उनके लिए वर्चुअली अचीवन कर दी है, मुश्किल कर दी है, इम्पॉसिबल कर दी है। आई डोंट थिंक कि इसके बाद इनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर पाकिस्तान में कम अज कम है। आप ठीक है, आप ये करें कि जिनकी अगली पहुंच जो है वो लंदन में, आप यूके में पॉलिटिक्स करें। आई थिंक वहीं उनकी जायदादें हैं, वहीं उनकी हॉस्पिटल है, वहीं उनके स्कूल हैं, वहीं कॉलेजेस हैं, वहीं उनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स भी हैं जो इनके बारे में खबरें आ रही हैं। मैं बयान नहीं करना चाहता, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान के इंटरेस्ट बेच के अपने ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये होगा नहीं, बिकॉज दिस इज सोशल मीडिया टाइम। यहाँ अब 70s 80s 90s की बात नहीं है। मैं आज ही किसी से बात कर रहा था इस सिलसिले में। मैंने कहा जो अवेयरनेस खान साहब ने क्रिएट कर दी है, और वो उसके बाद तो अब ये इस किस्म के लोग जो हैं, लोग पीपल हैव सीन थ्रू देम। तो ये जो वोट को इज्जत दो, या ये जनरल्स का एहतसाब करो, या जजेस का एहतसाब करो, ये चीजें अब मैटर नहीं करती हैं। वोट खान का है, वोट ने खान को ही मिलना है। इलेक्शन करवाएंगे जब भी करवाएं, 2 महीने बाद, 2 साल के बाद करवाएं, फ्रैंकली वोट उसी का ही है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, जो मर्जी कर। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ये बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी कि जी पता नहीं दुरानी साहब हैं, कोई वो सदर साहब से जाके मिले हैं और उसके बाद वो और लोगों से मिले वगैरह वगैरह, कोई मुलाकातें हुई अटक जेल में इमरान खान से, जिसको बाद में डिनाई कर दिया गया। उनके वकला ने जब मिलकर आए तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात भी नहीं है। ये तो हमें यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। क्या एनीवन हैज रीच्ड आउट टू यू फ्रॉम द पावर कॉरिडोर्स, टू यू गाइज, आई मीन कोर कमेटी या इस तरह के लोगों को, या आप लोग जो इस वक्त आप लोग डिसीजन मेकर्स हैं, आप लोगों तक कोई ऐसी बात है, कोई ब्रिज बिल्ड किया जा रहा है, या ये तमाम चीजें जो हैं इसमें कोई भी सदाकत नहीं है? नहीं जी, हमारे तक डायरेक्टली तो कोई किसी का राब्ता नहीं हुआ, और ना ही हम कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले में। बेसिकली हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो इलेक्शन है, वो इलेक्शन था, वो इलेक्शन है, वो इलेक्शन रहेगा। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, जब भी हो। अब कह रहे हैं कि जनवरी के आखिरी महीने में करते हैं, कि मुझे तो होता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन चलिए जब भी हो जाएगा। हमारी प्रायोरिटी जो है, हमारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के ऊपर है। मोहम्मद अली दुरानी साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, उस कमेटी का मैं भी फर्द हूँ, एक जो पॉलिटिकल कनेक्टिविटी कमेटी है। सो वी मेट हिम। वो बेसिकली अपने आप को 2-3 साल के बाद वो लेके आते हैं, वो कहते हैं जी मैं कौमी यकानगत, कौमी यकजहती की बात कर रहा हूँ, और हमें 3 जो हैं नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें उनके गिर्द इकट्ठा होना चाहिए, पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज। तो हमने उनको कहा जी कि ये चीज़ें तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। मतलब ये मतलब I mean I don't want to get into that, it gets bitter, but the point is कि जी वो जब हमने सवाल किया, हमने रेस किया, अपना क्वेश्चन रेस किया जी कि जो इस वक्त PTI के साथ हो रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो ये कि जी अभी वो हम उसको एड्रेस करेंगे, टाइम विल कम व्हेन वी विल एड्रेस दैट। सो बेसिकली आप इनके ऊपर इन चीज़ों को, तो हमने कहा जी इन चीज़ों के बारे में तो बात करना फजूल इसलिए है कि जी इस बारे में कोई डिस्प्यूट है ही नहीं है, जो है वो है। रियासत से कौन डिसएग्री कर सकता है, जमहूरियत से किसको डिफरेंस हो सकता है? ये चीजें इसके साथ किसी के साथ किसी के बारे में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर बढ़िए। जो इस वक्त जो एक पार्टिसन रोल, एक जो एस्टैब्लिशमेंट है आपकी, जो आपकी हुकूमत है वो प्ले कर रही है, जो पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, जो हमारे बच्चों के साथ जो हो रहा है, जो हमारे वर्कर्स के साथ हो रहा है, हमारे लीडर्स के साथ हो रहा है, उनको 5-6 महीने से आपने कैद में रखा हुआ है। एक मुकदमे में उनकी बेल होती है, दूसरे में पकड़े जाते हैं। अब देखिए परवेज अलाई जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ के, उसको 22वीं दफा गिरफ्तार किया है, 22nd टाइम। ये जो बच्चियां हैं इनको 6-6, 8-8, 10-10 दफा गिरफ्तार किया जा चुका है। सो एक पैटर्न है ना, एक वो उनका एक मकसद है, वो ये बड़ा क्लियरली सामने आ गया, उसमें कोई डाउट नहीं है कि पीटीआई को हमने इस काबिल नहीं छोड़ना कि वो इलेक्शंस में हिस्सा ले सके, और खान साहब को जेल में रखना है ताकि वो बाहर आके इस इलेक्शन कैंपेन को लीड ना कर सके। तो इसके बावजूद खान साहब की इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि कुछ भी हो हमने इलेक्शंस में हिस्सा जरूर लेना है, और हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी मौजूद है, बिल्कुल वाइब्रेंट है, इट्स किकिंग, we are operating, so we'll take part in the election, and inshallah taala Khan will come back as the prime minister of the country. Great, inshallah. अच्छा, बातें जाहिर है बहुत ज्यादा हैं, मैं इसलिए आपसे करते हैं कि आपसे जो है वो डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल जाती है और लोगों तक भी पहुंच जाती है, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इस तरह से। तो पता क्या बात ये चल रही है कि जिस तरह जी अब ये खवातीन को छोड़ा गया, खैर उसको पकड़ भी लिया गया, मुचलके भी जमा हो गए, रोबकार भी हो गया, तमाम चीज़ों की पकड़ लिया गया, कराची में वर्कर्स की बेल हो गई है। अब हम यानी कि दोनों तरफ की चीज़ें देखते हैं ना, मैं मतलब आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूँ और उसमें से लोग जो चीज़ें अखज़ कर रहे हैं मैं वो आप तक पहुँचाता हूँ। कराची में लोग, आप हमारे वर्कर्स जो हैं उन बहुत बड़ी तादाद में जितने भी थे तकरीबन उनकी बेल हो गई है, लेकिन जो सिंध के सदर हैं वो भी पकड़े हुए हैं, हलीम आदिल शेख साहब, ठीक है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इमरान रियाज खान वापस आ चुके हैं, बेचारे बड़ी मुश्किल हालत में हैं, उनकी हमने तस्वीर वगैरह देखी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि वापस आ गए। इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला में मुंतकिल कर दिया गया, कहा जा रहा है कि वो A क्लास B क्लास जो भी होती है, जो वज़ीर आज़म को जो मतलब मिलनी चाहिए वो मिल रही है। तो लोग ये समझते हैं कि प्रोबेबली थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स a betterment, मे बी कोई बर्फ पिघल रही है, कोई ऐसा हो रहा है, कोई आपको लगता है कि तमाम हालात देखें, क्योंकि दोनों तरफ के मैंने आपको हालात बता दिए कि एक तरफ तो ये भी हो रहा है, दूसरी तरफ ये भी हो रहा है, और ये तमाम चीजें साथ चल रही हैं। अब मैं like to say it is too early to sort of to be taken in by that कि इस किस्म की कोई चीज हो रही है। जो मैंने जो पैटर्न देखा है वो ये देखा है जी कि अदालतों में ये जो कुछ लोग जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। बाबर सत्तार है फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दो बंदे हैं, ये खड़े हो रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे हकूक़ हैं उनकी तलाफी ना हो, कि इंडिविजुअल्स की हद तक ये है। मैं नहीं कहूँगा कि ये काम जो है वो इंस्टीट्यूशन की हद तक भी जा चुका हुआ है। दूसरी बात, बेल्स जो हो रही हैं उनको भी मैं इंडिविजुअल्स का शाखसाना कहूँगा, इंडिविजुअल्स का एक्ट कहूँगा, रादर दैन कि ये कोई एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म की चेंज जो है वो है ही है। मुझे वो नज़र नहीं आ रही है अभी तक, फ्रैंकली टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, आई कांट सी दैट चेंज। खान साहब जो हैं वो उनको अडयाला में मुंतकिल किया गया है, वो उनका अटक में रहना वैसे भी इलीगल था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था, बिकॉज अटक में वो थे जबकि उनको कन्विक्ट किया गया था और वो अपनी सजा काटने गए थे। लेकिन वो जब वो उनकी जो सजा थी वो सस्पेंड हुई थी तो उसके बाद वो कन्विक्ट नहीं रहे थे, उसके बाद वो अंडर ट्रायल प्रिजनर थे। अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है वो अटक में नहीं रह सकता, उसको उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना होता है जहाँ मुकदमा उनके ऊपर मुकदमा इस्लामाबाद में चल रहा था। सो अडयाला जेल जो है वो रेलिवेंट जेल है। तो वो 15 दिन तक वहाँ रहे हैं, 20 दिन तक मेरा ख्याल अटक में वो इलीगल तौर के ऊपर रहे हैं, और वो ये केस बनता है, प्रॉपर केस बनता है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये फैसला इससे पहले नहीं किया और उनको अडयाला में शिफ्ट नहीं किया। सो अब वो अडयाला आ चुके हुए हैं, कल शाम से वहाँ हैं। अंडरस्टैंडेबली मैं तो अभी भी नहीं जा सका हूँ, बेहतर उनको वहाँ सहूलियात मुयस्सर हुई हैं रिलेटिवली स्पीकिंग अटक के मुनासबत से। तो आई होप कि 1 या 2 दिन में मैं जाऊँगा तो फिर आपको ज़्यादा कैंडिडली मैं हालात से आगाह कर सकूँगा। आप मुलाकात होने के चांसेस हैं खान साहब से? जी मुझे कोर्ट ने इजाजत दे दी हुई है, मेरे पास रिटन परमिशन है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुझे 1 हफ्ते से मैं इंतजार कर रहा हूँ। कोर्ट की परमिशन मेरे पास मौजूद है, हाई कोर्ट की, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अटक की एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ, उसने मुझे नहीं अभी तक इजाजत दी थी। अब वो अडयाला में आए हैं तो शायद यहाँ मिल जाए। तो आई होप दैट इन द नेक्स्ट 2-3-4 days आई वुड बी एबल टू गो एंड मीट हिम। सो वो कहते हैं कि 3 बड़ों की मुलाकात अडयाला में हो सकती है, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब। तो प्रोबब्ली कोई पार्टी स्ट्रेटजी है अंदर मिलेंगे डेफिनेटली, आप बात तो करेंगे आपस में, आई थिंक लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दीस पीपल, उससे भी ज्यादा जो इक्वली अनफॉर्चुनेट इज द फैक्ट कि जो हमारे वर्कर्स हैं जो उनके साथ किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको जिन कंडीशंस में उनको रखा जा रहा है, मैंने तो कभी नहीं देखा सर मुल्क में। बहुत कुछ देखा मैंने इस मुल्क में, लेकिन ये इस लेवल जो है, इस लेवल की ब्रूटैलिटी और इस लेवल की फस्तायत मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान। अच्छा रऊफ हसन साहब, पता है मैं आपको बताऊं एक पर्सनल नोट पे बात, इस प्रोग्राम के बाद से आज हमारा 78वां प्रोग्राम है और हमने प्लान किया था
100واں پروگرام ہوگا وہ خان صاحب کے ساتھ کریں گے. تو خان صاحب کو ہمارا پیغام دیجیے کہ 100واں پروگرام ہم آپ کے ساتھ. انشاءاللہ میرا آخری جو ہے وہ سوال بیفور وی کلوز وہ یہ ہے, آپ نے دیکھا کل جب اٹک جیل سے اڈیالہ جیل تک خان صاحب گئے اور لوگوں نے گو کہ وہ بالکل ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کچھ کیا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اس کے باوجود بہت لوگ تھے اور کیے. How do you imagine him coming out of the jail? I'm looking forward to the day. Ali, I'm looking forward to the day, and I wish you would be here also. یہ ملک جو دیکھے گا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, قائد اعظم کی ذات کے بعد یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ ایک فینومینن ہے. میں خان صاحب کو ایک فرد نہیں مانتا. He's a phenomenon. He's rewriting the political history of Pakistan. Rewriting the political history of Pakistan. No other leader had the courage to do this in the past. ابھی آپ بات کر رہے تھے شریفوں کی, زرداریوں کی. یہ ٹاؤٹس ہیں. ایک ٹاؤٹ سے زیادہ ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ لیڈرز نہیں ہیں. یہ پاکستان کی مس فارچون کے آرکیٹیکٹس ہیں. یہ لوگ, انہوں نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا ہے. یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ری رائٹ کر رہا ہے, اور اس کے بعد شریفوں اور زرداریوں کا ناطقہ بند ہو جائے گا. اس ملک کے اوپر دوبارہ حکومت کرنا ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہوگا. ایک جاگی ہوئی قوم کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا پڑے گا, ایک اویئر قوم کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا, ایک موٹیویٹڈ قوم کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. اس سے پہلے یہ تو سروائل قوم کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں, جو پٹواریوں کے ذریعے مینیج کرتے تھے, جو تھانوں کے ذریعے مینیج کرتے تھے, جو پیسے کے ذریعے مینیج کرتے تھے. یہ خان کی کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے اس قوم کو جگایا ہے, کھڑا کیا ہے, ان کو بتایا ہے کہ ان کی ورتھ کیا ہے. یہ قوم اب زرداریوں اور شریفوں کے بس کا روگ نہیں ہے سر. یہ قوم ان سے بہت آگے جا چکی ہوئی ہے. میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں سر جب یہ ملک پہ تاریخ لکھی جائے گی, اس دن جب خان انشاءاللہ تعالی جیل سے باہر نکلے گا اور دیکھے سے یہ قوم اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتی ہے, ہم اس کو کس طریقے سے اس کا ویلکم کرتی ہے. ریمارکیبل. رؤف حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک فیض صاحب کا شعر آپ سنا دیں ہماری فرمائش پر, اور بیفور وی کلوز فیض کو. جی, یہ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, جو انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل. کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل, کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. بھائی اسی لیے زندہ ہیں ہم. اس عمر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ سفینہ غم دل جو ہے نا وہ اپنے ساحل کو لگے, اور یہ ملک جو ہے یہ اپنے ساحل پہ لگے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. کبھی تو جا کے رکے گا یہ سفینہ غم دل, کہیں تو جا کے. تھینک یو سر, تھینک یو. منظر قریب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ رؤف حسن صاحب. تھینک یو. رؤف حسن صاحب آج ہمارے ساتھ تھے. بڑی ہمیشہ کی طرح ایک اچھی گفتگو, بہت سی باتوں پر, بہت سی موضوعات پر جو کہ ہم کیچ اپ کرنا چاہتے ہیں ان پر باتیں ہوئی. ہمیں نہیں پتا کہ برف پگھل رہی ہے نہیں پگھل رہی, کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کچھ آگے چیزیں چلیں گی یا نہیں چلیں گی, بہتری کی طرف جانا چاہ رہی ہیں نہیں جانا چاہ رہی. کچھ مقتدر حلقے ہیں جو طاقتور حلقے ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہیں سپوزڈلی, ارباب اختیار جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کیا سوچ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ برف پگھل رہی ہے کہ نہیں. ہمارے پاس کوئی اندر کی خبر نہیں. ہم نے رؤف حسن صاحب کو بھی لائن پہ لے لیا, انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں ہو رہا. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ جس طرح سے چل رہا ہے اس طرح سے تو یہ نہیں چلے گا, یہ تو نہیں چلے گا اس طرح سے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے, اور جتنا جلدی فیصلہ کر لیں اتنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کو چلانا کیسے. وہ ایک وہ جو گانے کا وہ مصرع تھا کہ مجھے فکر یہ نہیں ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا, مجھے فکر یہ ہے کہ کہیں ایسے نہ چلتا رہے. تو ہمیں بھی یہ فکر ہے کہ جس طریقے سے یہ چل رہا ہے اس طرح سے نہ چلتا رہے. اور اس کے بعد جب ہم بیانات سنتے ہیں کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے کہ عمران خان کے بغیر اور تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ہو جائیں گے, فری اینڈ فیئر ہوں گے, آپ اس طرح کی لوگوں کی عقلوں پر ماتم نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جب ہم اپنے نئے وزیر خزانہ جو ہیں ان کے بیانات سنتے ہیں خواتین کے بارے میں کہ خواتین کی ترقی اور اس کے بارے میں اور پاکستان کی وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں, تو آپ کو ان جیلوں میں بلکتی ہوئی سسکتی ہوئی اپنی رہائی کی منتظر سینکڑوں خواتین یاد آ جاتی ہیں کہ جو اس وقت اس ملک کی جیلوں میں ہیں. وہ خواتین جن کی چادر اور چار دیواری کی پامالی کی گئی, گھروں کے اندر جا کر خواتین کو دھمکیاں دی گئی, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کے بچوں کے جو ہے وہ کنپٹیوں پر بندوقیں رکھ کے, یہ تمام کی تمام چیزیں اس ریاست نے کی.
ریاست کو سوچنا پڑے گا اگر اس ریاست نے آگے اس چیز کو لے کے جانا ہے. آپ کو واشنگٹن کوئی بلائے، بیجنگ بلائے، دنیا میں جہاں کہیں بھی بلائے، ایک بات کو ذہن میں رکھیے، اس ملک کے فیصلے جب تک اس ملک کے اندر نہیں ہوں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں. بیٹر سینس پریویل کرے، اس کی دعا کرتے ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.